Hello, students of class 8, and welcome to Almanar online classes. Dear students, today we are going to discuss the very first chapter from your main course book, that is Celebrate, and the title of the chapter is The Night the Bed Fell, written by James Thurber. Before we begin with the chapter, I would like to give you a brief introduction about the author. So let's know about him. James Thurber was born in the year 1894 and died in 1961. He was an American author, cartoonist, journalist, and playwright. A student's playwright is a person who writes plays for the theatre, radio, and television. In Hindi, Natakar. Clear? Thurber's cartoons and short stories were published regularly in the New Yorker. New Yorker is the name of the magazine, right? He went almost completely blind due to an injury in one of his eyes. But that never stopped him from writing or drawing. One of the most popular humorists of his time. Humorist is a person who creates humor and laughter and makes people laugh, right? Thurber won many awards, including a Tony and an Emmy Award. So it's all about the author. Now let's move on to the difficult word meanings of the chapter. First one is high water mark means the most successful point. Youth, the period of your life when you are young. Attic. An attic is a room at the top of a building used for storing things. Then next one is opposed means refused. Notion means a belief or idea. Wobbly means insecure, unsteady. Dissuading means persuading someone not to do something. Ominous means suggesting that something bad is going to happen. Seize means stop. Suffocation means death caused by not having enough oxygen. Abandon means to stop doing something, to give up, to leave. LA means to make a negative emotion less strong, uh, to ease, to calm. Camphor, a substance with a strong odor. Odor means smell, something used for medical purposes. Reviver means something that restores conscious. Stray means diverged. In Hindi, भटकाना. Layout means state of something. किसी चीज़ की हालत या दशा या स्थिति. Disposition means arrangement, placement. Terrier, a breed of small and active dog, which is used for hunting, right? Sideboard means a piece of furniture with a flat top and cupboard at the bottom, usually used for holding glasses, plates, etc. Perilous means extremely dangerous. Tip means bend या फिर decline, झुकना. Tip over means to overturn, to fall. पलटना, उलट जाना. Topple over means to fall down, lose balance, नीचे गिरना. The next one is bundle up means wrap up, covered, ढका हुआ होना. Canopy means a cover fixed over a seat or bed, etc., for shelter or decoration. Now open your book and follow. And now open the book and follow me. Warm up.
Write 10 words that come to your mind when you think of the word family. Discuss your list in class. Students, it's a homework for all of you that you have to you have to prepare a list of 10 words related to family and send that list on my WhatsApp number, right? I suppose that the high water mark of my youth in Columbus, Ohio was the night the bed fell on my father. राइटर यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जो सबसे सक्सेस पॉइंट रहा है, सबसे जो रिमार्केबल पॉइंट रहा है मेरी लाइफ का, वो कोलंबस में एक जगह है ओहियो, वहाँ पे रहा है। और वो एक रात की बात बता रहे हैं कि जिस रात को बेड जो है मेरे फादर पर गिर गया था। It happened then that my father had decided to sleep in the attic one night to be away where he could think. My mother opposed the notion strongly because she said the old wooden bed up there was unsafe. It was wobbly and the heavy headboard would crash down on father's head in case the bed fell and kill him. There was no dissuading him, however, and at a 10:15 he closed the attic door behind him and went up the narrow twisting stairs. We later heard ominous crackings as he crawled into bed. Grandfather, who usually slept in the attic bed when he was with us, had disappeared some days before. अब वो कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो बेड गिर जाता है, वो कब की बात है कि जब मेरे जो फादर हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एटिक में सोएंगे। एटिक क्या होता है? एक रूम होता है जो सबसे ऊपर सबसे ऊपर होता है, पूरी बिल्डिंग के ऊपर होता है। उसमें यूजुअली जो अनयूज थिंग्स होते हैं वो स्टोर करने के लिए वो घर बनाते हैं। टू बी अवे, और वो क्यों वहाँ सोना चाह रहे हैं? उनके फादर कह रहे हैं कि मैं इसलिए वहाँ सोऊंगा और ताकि मैं कुछ अलग रह के कुछ सोच सकूं। माई मदर अपोज द नोशन स्ट्रांगली, मेरी माँ ने उसको मना किया, अपोज किया, उसका उनका विरोध किया कि आप वहाँ ना सोएं। क्यों? शी सेड द ओल्ड वुडन बेड अप देयर वॉज अनसेफ, यानी वो जो पुराना बेड है वो वुडन बेड है वो अनसेफ है। इट वॉज वोबली, वोबली मीन्स पुराना होने की वजह से जो मूव होता है, कमज़ोर हो गया है, उसे क्या बोलते हैं? वोबली। एंड हैवी हेडबोर्ड वुड क्रैश डाउन ऑन फादर्स हेड इन केस द बेड फेल एंड किल हिम। देखिए इसमें हेडबोर्ड क्या होता है? जो बेड होता है उसका सामने वाला पोर्शन होता है उसे बोर्ड कहते हैं। आई हैव द पिक्चर ऑफ हेडबोर्ड, जस्ट वेट अ सेकेंड। Yes, this portion of bed is known as headboard, right? तो वो कहते हैं कि हेडबोर्ड उनके सर पर गिर जाएगा और वो मर जाएंगे। देयर वॉज नो डिसवेडिंग हिम, फिर भी उनको वो लोग कन्विंस नहीं कर पाए, मना नहीं कर पाए, और वो वहाँ पे चले। 10:30 बजे वो 10:15 वो एटिक में चले जाते हैं एंड क्लोज द एटिक डोर बिहाइंड हिम एंड वेंट अप द नेरो ट्विस्टिंग स्टेयर्स। और वो ट्विस्टिंग स्टेयर्स है, इस तरीके की जो स्टेयर्स होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग स्टेयर्स बोलते हैं, राइट। दिस इज़ द पिक ऑफ ट्विस्टिंग स्टेयर्स, ठीक है। और वो उस ट्विस्टिंग स्टेयर से होके वो एटिक में चले जाते हैं और वहाँ जाके डोर को पीछे से बंद कर देते हैं। क्लोज द एटिक डोर बिहाइंड एंड वेंट अप द नेरो ट्विस्टिंग स्टेयर्स। वी लेटर हर्ड ओमिनस क्रैकिंग्स एज ही क्रॉल्ड इनटू बेड। तो हमने वहाँ पे वो आवाज़ सुनी। ओमिनस क्रैकिंग्स मीन्स the sound of something happening, right? We heard the sound of cracking, so that something had happened. Grandfather जो जब हमारे साथ रहते थे, grandfather who usually slept in the attic bed when he was with us had disappeared some days before. जो मेरे दादाजी थे वो जब हमारे साथ कुछ दिन पहले रहते थे, वो हमारे साथ सोते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो यहाँ हमारे पास नहीं है, कहीं और चले गए हैं। We had visiting us at this time a nervous first cousin of mine named Brix Beale,
who believed that he was likely to cease breathing when he was asleep. इसी टाइम पे क्या होता है, क्या उनका एक कज़न है जिसका नाम क्या है, ब्रिक्स बील है, वो हमारे पास आने वाले होते हैं और उसका नाम और उनका ये मानना होता है कि अगर वो सो जाते हैं पूरी रात मतलब लंबे टाइम के लिए, उनको ये लगता है क्या उनकी सांस रुक जाएगी. इट वॉज फीलिंग दैट उनकी सांस रुक जाएगी. इट वॉज फीलिंग दैट ही वर नॉट अवेकन्ड एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट. अवेकन एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट ही माई डाई ऑफ सफोकेशन. अगर उनको हर घंटे में एक एक घंटे के इंटरवल में नहीं वो उठेंगे तो क्या होगा, उनकी सांस रुक जाएगी और वो मर जाएंगे. ही हैड बिन अकस्टम टू सेटिंग एन अलार्म क्लॉक to ring at intervals until morning. But I persuaded him to abandon this. He slept in my room, and I told him that I was such a light sleeper that if anybody quit breathing in the same room with me, I would wake instantly. He tasted me the first night, which I had suspected he would. By holding his breath after my regular breathing, I had convinced him I was asleep. I was not asleep, however, and tapped him. This seemed to allay his fears a little, but he took the precaution of putting a glass of spirits of camphor on a little table at the head of the bed, in case I didn't rouse him until he was almost gone. He said he would sniff the camphor, a powerful reviver. अब मैंने तो उनको कन्विंस कर लिया कि तुम क्या करो, अलार्म वो पूरी तरीके से जब जब भी सोता था वो हर हर घंटे के इंटरवल में हर घंटे के लिए एक अलार्म फिक्स करके सोता था. और उनका ये मानना था कि अगर मैं हर एक घंटे के ड्यूरेशन से नहीं उठूँगा तो उस क्या होगा, दम घुट जाएगी और वो मर जाएगा. और वो ये काम करने का आदी था. कस्टम टू सेटिंग एन अलार्म यानी अलार्म सेट करने का आदी हो गया था. एट इंटरवल्स ड्यूरिंग मॉर्निंग यानी टिल मॉर्निंग तक, यानी एक एक घंटे के इंटरवल के लिए वो अलार्म सेट करके सोता था. एंड बट आई परसुएडेड हिम टू अबैंडन दिस. अबैंडन मीन्स टू क्विट. मैंने उनको लेकिन ये कन्विंस कर लिया कि तुम ऐसा मत करो. ही स्लेप्ट इन माई रूम. वो मेरे रूम में सोया. एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज सच अ लाइट स्लीपर. कि मैं इतना लाइट यानी मेरी नींद इतनी हल्की है कि इफ़ एनी बडी क्विट ब्रीदिंग इन द सेम रूम विद मी आई वुड wake up instantly. कि इफ़ एनी बडी क्विट ब्रीदिंग आई वुड वेक अप इमीडिएटली. कि मैं अगर कोई सांस लेना छोड़ दे तो मैं फ़ौरन उठ जाता हूँ. ही टेस्टेड मी द फर्स्ट नाइट. उसने मेरा टेस्ट लिया यानी वो देखा कि मैं जैसा बता रहा हूँ क्या मैं वैसा करता भी हूँ या नहीं. विच आई हैड सस्पेक्टेड ही वुड. और मुझे शक था कि वो ऐसा ही करेगा. बाय होल्डिंग हिज ब्रेथ आफ्टर माई रेगुलर ब्रीदिंग. कि मैं जब रेगुलर सांस ले रहा था वो उसने क्या किया कि उसने अपनी सांस रोक ली. हैड कन्विंस्ड हिम आई वॉज asleep. और मैं भी उसे ऐसा कन्विंस सब मना लिया था कि हाँ मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था. आई वॉज नॉट asleep, लेकिन मैं असल में सो नहीं रहा था. एंड टैप्ड हिम. मैंने उसको हल्का सा हिट किया. दिस सीम टू एली हिज फियर्स अ लिटिल. तो इस वजह से उसको क्या हो गया, थोड़ा सुकून मिल गया कि हाँ मैं लाइट स्लीपर हूँ और अगर उसकी सांस रुक जाएगी तो मैं उठ जाऊँगा. बट ही टुक द प्रिकॉशन ऑफ पुटिंग अ ग्लास ऑफ स्पिरिट ऑफ कैम्फर ऑन अ लिटिल टेबल एट एट द हेड ऑफ द बेड. लेकिन फिर भी वो क्या करता है, कैम्फर का एक गिलास यानी कपूर का एक गिलास अपने बेड के साइड में रख लेता है. वो क्यों रख लेता है कि इन केस आई डेंट राउज हिम अंटिल ही वॉज ऑलमोस्ट गॉन. कि अगर मैं उनको नहीं उठाऊं और उनकी सांस जो है रुक जाए. ही सेड ही वुड स्निफ द कैम्फर अ पावरफुल रिवाइवर. तो वो क्या करेगा, उस कैम्फर को सूंघ लेगा जो क्या है, एक पावरफुल रिवाइवर है. I am straying from the remarkable incidents that took place during the night that the bed fell on father. कि मैं उसको क्या कर रहा था, इस तरह की बात करके उस इंसिडेंट से भटका रहा था. Stray means diverged.
भटका रहा था कि बेड जो है मेरे फादर पे गिर गया. बाय मिडनाइट वी वर by midnight we were all in bed. आधी रात तक हम सभी लोग कहाँ बेड पर थे. द layout of the room and the disposition of this occupants is important to an understanding of what later occurred. In the front, the layout of the rooms and the disposition of their occupants is important to an understanding of what later occurred. In the front room upstairs, just under father's attic bedroom, were my mother and my brother Terry, who sometimes sang in his sleep, usually marching through Georgia. Briggs, Beale, and myself were in a room adjoining this one. My brother Roy was in a room across the hall from ours. Our bull terrier Rex slept in the hall. अब उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं कि आधी रात तक हम सभी लोग क्या थे, बिस्तर पर थे. अब वो रूम का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या उस रूम की जो कंडीशन थी वो कैसी थी. द ले आउट ऑफ द रूम्स, डिस्पोजिशन ऑफ, और जो उसमें जो सामान, डिस्पोजिशन मीन्स प्लेसमेंट ऑफ द आइटम्स, प्लेस अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स, वो कैसा था, इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लेटर अकर्ड इन द फ्रंट रूम अपस्टेयर्स. कि उसके अपस्टेयर्स यानी ऊपर वाला जो रूम है उसमें क्या क्या हुआ. जस्ट अब उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जस्ट अंडर फादर्स एटिक बेडरूम, कि वो रूम जो था फादर का जो एटिक बेडरूम था उससे जस्ट नीचे था. अब उसके आगे वो क्या बता रहे हैं कि वह माई मदर एंड माई ब्रदर टेरी हु समटाइम्स सेंग इन हिज स्लीप. अब वो रूम किस किस का था. एक रूम में तो मेरी मदर रहती थी और दूसरे रूम में मेरा भाई टेरी. और टेरी की एक आदत ये थी कि अक्सर वो नींद में क्या गाता था, मार्चिंग थ्रू जॉर्जिया. ब्रिक्स बील एंड माई सेल्फ. अब ब्रिक्स बील और वो खुद राइटर कौन से रूम में हैं, इन अ रूम एडजॉइनिंग दिस वन, यानी यही वाले रूम, मतलब एक हॉल है, एक उसी हॉल से लगा हुआ एक रूम है जिसमें कौन है, ब्रिक्स और राइटर सो रहे हैं. माई ब्रदर रॉय वॉज अ रूम अक्रॉस द हॉल, यानी वह उसी के सामने वाले रूम में जिसमें राइटर और ब्रिक्स सो रहे हैं, उसी के फ्रंट वाले रूम में कौन सो रहे हैं, उसका भाई जो है वो रॉय सो रहा. आर बुल टेरियर रेक्स स्लेप्ट इन द हॉल. हमारा जो बुल टेरियर है उसका जो डॉग है वो हॉल में सो रहा है. माई बेड वॉज एन आर्मी कोट. मेरा जो बेड है वो एक आर्मी कोट है. आर्मी कोट, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ एन आर्मी कोट विच कैन बी folded. Yes, this is army coat, right, which can be folded. My bed was My bed was an army coat, one of those affairs which are made wide enough to sleep on comfortably only by putting up flat with the midnight section, the two sides which ordinarily hang down like the sideboards of a drop leaf table. When these sides are up, it is perilous to roll too far toward the edge, for then the coat is likely to tip completely over, bringing the whole bed down on top of one. With tremendous banging crash, this in fact is precisely what happened about 2 o'clock in the morning. It was my mother who, in recalling the scene later, first referred to as the night the bed fell on your father.
अब राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो मेरा बेड है वो जस्ट लाइक एक आर्मी कोट की तरह है, और उसको क्या कर सकते हैं, आराम से फोल्ड कर सकते हैं और कंफर्टेबली सो सकते हैं, फ्लैट विद द मिडल। लेकिन उसमें क्या एक क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब उसमें सोता है तो वो बीच में से हैंग हो जाता है, लूज़ हो जाता है और वो लटकने लगता है। एंड by putting the flat with the middle section. The two sides, which ordinarily hang like the sideboards of the drop leaf table. Drop leaf table ऐसा कुछ होता है। यस, ऐसा जब उसमें उस कॉर्ड पे सोता है तो वो इस तरीके से बीच में से वो हैंग होने लगता है, लटकने लगता है, राइट। द साइड्स, और ये क्या है, व्हेन दीज साइड्स आर अप इट इज़ अ पेरिलस टू रोल टू फॉर टूवर्ड द एज फॉर देम द कोट इज़ लाइकली टू टिप completely ओवर। जब वो इस तरीके से बीच में से लटक जाता है तो इसका जो किनारा होता है बेड का, वहाँ तक जाना या पूरे बेड पे सोना, ये थोड़ा सा पेरिलस होता है। पेरिलस मीन्स एक्सट्रीमली डेंजरस। क्लियर। Bringing over the whole bed down on the top of the one which tremendous banging crash। तो ये क्या होता है, it creates a lot of problem। और वो क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं कि अच्छे से नहीं सो पाते हैं। इनफैक्ट इज़ प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड अबाउट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। और मुझे ये ऐसा ही कुछ है जो कि 2 बजे के आसपास हुआ होता है। इट वॉज माई मदर who in recalling the scene later first referred to as the night the bed fell on your father। और ये मेरी माँ है जो याद करती हैं कि वो उस रात को क्या होता है, बेड मेरे फादर पर गिर जाता है।